आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। आप देख रहे हैं हमको नेशन नाउ पर। आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, वाणकम, चाइनीज में नी हाउ, जापानीज में कोनिचिवा। प्रदीप जी, Abariya Kojabo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. wherever they speak Swahili, and that's a lot of people. That's a whole lot of people. We got a lot of viewers from China and Africa. That's right. And so amazing announcements from बिल्कुल sir. Eknath Shinde साहब। Yes sir. आज वो देवशाइनी एकादशी Yes, है, yes. उसके बाद चातुर्मास शुरू हो जाएगा। उसके पहले फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग समथिंग बीइंग अनाउंस्ड फॉर बॉयज। अभी तक सिर्फ लाडली बेटी, लाडला भाई भी अब शुरू हो गया है। वो लाडली बहना थी, अब लाडला भाई भी शुरू हो गया है। उसमें अब 6,000 रुपये दिए जाएंगे जिसके पास डिप्लोमा है, और 6,000 12 सर्टिफिकेट, 12 कुछ 6,000, डिप्लोमा 8,000, डिप्लोमा 8,000, okay, ग्रेजुएशन 10,000, 10,000 rupees for all graduates, which Yes, is sir. amazing. It could be a real game changer. Where's he going to get the money from? Because he has to have such a huge budget allocation for women. He has to have such a huge budget allocation for young boys. So it's going to be a bit difficult. And what I can't understand about the scheme is, I'm not very clear about it right now, is it going to be for young people? I mean, is there a cutoff date? Will it be up till say the age of 25 or 30 or something, or will it be up till the age of 65? They're framing the पूरे जॉर्ज लॉज है वो आ रहा है, बट दिस वाज अ वेरी गुड। मोदी जी आए थे यहाँ पर मुंबई में, तो दे हैड दिस युवा कार्य प्रशिक्षण योजना। चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, 5,600 crores have been allotted for that. But this is going to be much more than 5,600 crores, Pradeep ji. But ये जो scheme है, it will cost him at least 55, if not more, at least 60,000 crores. but the very top is going to 36,000 करोड़ जो लाडली बहना योजना उसके लिए, yes sir, और 50-55,000 करोड़ अगर इसके लिए, तो मतलब you are looking at about 90,000 crores odd. yes. So money is going to flow into the economy. Money is going to flow into the economy, and people are going to spend money, and that's good for the economy. and good signs. And the other thing which I really loved today was देवेंद्र फडणवीस साहब अपने गढ़चिरौली गए, और वहाँ पर उन्होंने वो जो इस्पात है उसकी एक स्टील इंडस्ट्री की एक he's laid the foundation stone. Yes sir, yes sir. Which is amazing. I mean, up till now we had only heard of and talked to Naxalites and Maoists Yes, in yes. गढ़चिरौली। Correct sir. और जैसा देवेंद्र फडणवीस साहब ने कहा कि भाई देखिए, अब आज के बाद गढ़चिरौली की जब भी बात होगी तो स्टील की बात होगी। Fantastic. मतलब ये अब ये कांग्रेस ने और कांग्रेस की अलग अलग सरकारों ने गढ़चिरौली को सिर्फ नक्सलवाद और माओवाद दिया, हम लोग गढ़चिरौली को स्टील देंगे, यानी इस्पात। इट विल बी द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ स्टील in the whole country. That's what he says, which is a great thing. Positive sentiments from all sides. Whether it's the students getting money, or whether it's Ladli Bahini that is getting schemes, getting money, farmers are getting money through that Annapurna Yojana. So everybody is raining money for the people in Maharashtra, and Right. that's good for the economy. Let's go across to Mr. Jitin Gajaria of the BJP. Jitin Gajaria साहब नमस्कार। नमस्कार राजीव जी। नमस्कार सर, नमस्कार, जय हिंद, जय सिया राम। कैसे हैं सर? जय सिया राम। जय सिया राम। तो सर ये तो मतलब मामला ही बिल्कुल अब तो क्लीन स्वीप हो गई। लाडली बहन, लाडला भाई, और उसके अलावा आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद व्हाट मिस्टर देवेंद्र फडणवीस हैज डन। ही इज गॉन टू, वो उधर गए हैं गढ़चिरौली, जहाँ पर नए वो इस्पात कारखाने की उन्होंने फाउंडेशन स्टोन लेकर ही है। दिस इज द फर्स्ट टाइम एनीबडी इज डेयर टू डू इट। आज तक कभी कोई गया ही नहीं, मतलब ऐसा ज़बरदस्त हो गया सर ये तो। जितिन गजारिया साहब जरा बताएं इसके बारे में प्लीज। देखिए, देवेंद्र जी की जो पहले पांच साल की जो टर्म थी एज अ चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर, और उसके बाद अभी जो टर्म है, तो उन्होंने एक कंसिस्टेंटली एक काम किया हुआ है, वो है गढ़चिरौली से नक्सलवाद को खत्म करना। गढ़चिरौली से नक्सलवाद को खत्म करना और महाराष्ट्र से अर्बन नक्सलियों को बाहर भगाना, खत्म करना और जेल में डालना। कंसिस्टेंटली देवेंद्र जी ने ये किया है, और आज का तो बहुत बड़ा है, माने वो
माने गढ़चिरौली के जहां पे एक समय पे नारे सिर्फ लगते थे लाल सलाम, वहां पे अभी से आपको सिर्फ सुनाई देगा वंदे मातरम वंदे मातरम। जी। ये सबसे बड़ा फर्क जो देवेंद्र जी ने 5 साल पहले और 2.5 साल, अब 7.5 साल के उनके टेन्योर में गढ़चिरौली का जो एक बदलाव किया है, वो मुझे लगता है कि देवेंद्र जी के अचीवमेंट्स में से सबसे बड़ा और सबसे अंडररेटेड अचीवमेंट। लेकिन ये स्टील प्लांट की जो फाउंडेशन स्टोन उन्होंने ले करी अभी, आई होप इट कम्स अप एंड कम्स अप वेरी वेल, क्योंकि अभी तक वहां से नक्सलवाद खत्म हुआ नहीं है। जितिन गजरिया साहब, देखिए, नक्सलवाद को खत्म करने के लिए जो एक जो टफ सिक्योरिटीज अपैरेटस जो चाहिए, उसके साथ साथ जॉब्स चाहिए, उसके साथ साथ डेवलपमेंट चाहिए। तो अब तो पहला तो काम सालों से जो हो रहा है 2014 के बाद से, बाकी के 2 काम भी चल रहे हैं, और अब जब ये होगा तो नक्सलवाद का खात्मा तो एकदम, जिसे कहते हैं कि अब निश्चित है। एक वो, दूसरा, अगर आपने ट्रैक रिकॉर्ड देखा होगा, फिर चाहे वो केंद्र में मोदी जी हो या यहाँ पे महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी हो, वो जो भी प्रोजेक्ट शुरू करते हैं वो प्रोजेक्ट को लॉजिकल एंड तक लेके जाते हैं। वो सक्सेसफुल करने के बगैर ये चेन की सांस नहीं लेते। तो ये आज नींव रखी है, और ये प्लांट तो खड़ा होगा ही, रोजगार देगा। ऐसे बहुत सारे प्लांट गढ़चिरौली में और आएंगे। जबरदस्त, गजरिया साहब, बट उद्धव ठाकरे जिस प्रकार से वातावरण जा रहे, शंकराचार्य गए घर में, उनको बोला कि यू शुड बी द सीएम एंड द एंड्स ऑफ जस्टिस विल बी मेट ओनली इफ यू बिकम द सीएम बैक। आपको बैकस्टैब किया गया, इनजस्टिस हैज बीन डन टू यू, एंड एमवीए शरद पवार जी सेज दैट 225 सीट्स लेंगे। तो हाउ डू यू सी, क्या ये वोट शेयर उनके फेवर में है? भले आप काम कर रहे हो, यू हैव टेकन वेरी वेल, जो डेवलपमेंट एजेंडा इज रनिंग फैंटास्टिक, बट अल्टीमेटली द वोट शेयर दैट काउंट्स। गजरिया साहब, कैसे होगा? देखिए, दो चीज पहले आपने जो दूसरा पॉइंट कहा कि शरद पवार जी ने कहा कि उन्होंने तो कहा कि 255 सीट आएगी 288 में से। लेकिन शरद पवार जी का जो आंकलन है, उनका जो एनालिसिस है, उसके ऊपर उनके पार्टी के ही एक एमएलए और उनके ही साथी पक्ष कांग्रेस के एमएलए को भरोसा नहीं है। वरना वो खुद 9 लोगों ने जो क्रॉस वोटिंग करी अभी के इलेक्शन में, मुझे ये बताइए, अगर किसी पार्टी के आमदारों को, एमएलए को कंफर्म है कि भैया हम तो 255 आएंगे ही, हम तो स्वीप करेंगे ही, तो वो तो क्रॉस वोटिंग क्यों करेंगे? क्योंकि उन्हें भी पता है कि शरद पवार जी कितना भी बड़ी बातें कर ले, इलेक्शन आएगा, शरद पवार जी को वो 255 में से कितनी आएगी वो उनको भी समझ में आ जाएगा, इसीलिए हुआ। सर 225 वरना तो बोला, 225 पॉलिटिकल पहले 155 बोला, फिर उसके बाद 225। एनीवे, भाई सर whether he says 225 or he can even say 325, how does it matter? जी नहीं। और दूसरा, जो आपने उद्धव ठाकरे की जो बात करी कि जहाँ पे शंकराचार्य जी के, देखिए शंकराचार्य जी धर्मगुरु है, वो कहीं पे भी जा सकते हैं, उनकी ये है। लेकिन एक सवाल ये है कि उद्धव ठाकरे को आज शंकराचार्य को मिलने का वक्त समय मिला, लेकिन जब पालघर के 2 साधुओं की हत्या की गई थी, तो उनके परिवारों को मिलने का समय उद्धव ठाकरे के पास नहीं था। उन्होंने तो साधुओं की हत्या करने वाले लोगों को बचाया था। मेरा सवाल है कि ऐसा कौन सा ये सनातनी नेता है कि जिसने साधुओं की हत्या को चुपचाप से लिया, हत्या करने वाले लोगों का समर्थन किया, सीबीआई में इंक्वायरी ना जाए उसके लिए 2.5 साल तक रोक के रखा। तो मुझे लग रहा है महाराष्ट्र की जनता बहुत होशियार है। उन्हें पता है कि ये सनातनी है या उस्मान ठाकरे है या जो भी है। और मैं और एक चीज बता रहा हूं, वो शंकराचार्य जी से मिले, उसके 2 दिन पहले वो ममता बनर्जी से मिले। कौन ममता बनर्जी? कि जो संदेश खाली में बलात्कार हुई हिंदू औरतों को न्याय नहीं दे रही है, उस औरत से मिले। तो सनातन का तो बहाना था, नाम था, कुछ और ही होगा, बट लेकिन ठीक है, महाराष्ट्र की जनता बहुत। लेकिन यहाँ पर सर ये कहा जा रहा है, एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट बिकॉज वी कवर्ड दैट एक्सटेंसिवली, मुझे याद है वो 2 साधुओं की जो हत्या हुई थी, उस वक्त होम मिनिस्टर अनिल देशमुख हुआ करते थे, और तकरीबन 115 लोगों को अरेस्ट किया था उसमें, और उन्होंने ये कहा था इतना बड़ा एक्शन कभी भी किसी सरकार ने नहीं लिया है।
115 people were arrested. I remember that. वो केस तो अभी चल रहा है ना सर, जितेंद्र गजरिया सर। नहीं, लेकिन सिर्फ अरेस्ट जो दिखावा, एक बार जब बहुत बहुत इस पे ऊपर हल्ला हुआ तब उन्होंने दिखावे के लिए अरेस्ट किए। अरेस्ट के अंदर कैसे कैसे वीक चार्जेस लगाए गए थे उनकी सरकार से, कैसे कैसे मेन कल्प्रिट को दूर रखा गया था। और अगर इनको न्याय देना ही था तो सीबीआई इंक्वायरी से क्यों डर रहे थे? सीबीआई इंक्वायरी तो तभी आई ना जब जब देवेंद्र फडणवीस जी वापस से होम मिनिस्टर बने, तभी आई। 2.5 साल तक तो इन्होंने कोई कोशिश नहीं की। तो इनका पालघर साधु की हत्या के अंदर तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज को धक्का लगाने का और हत्यारों को बचाने का काम किया। लेकिन अभी मुक्तेश्वरानंद जो हैं, जो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं, उत्तराखंड में ज्योतिष पीठ है, वो पहले अभी अंबानी जी के घर में शादी थी, वहाँ पर भी थे। वहाँ पर आदरणीय सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उनको बहुत रिस्पेक्ट दी, उन्होंने भी उनको रिस्पेक्ट दी। और उसके एकदम फौरन बाद उनका उद्धव ठाकरे जी के घर पे जाना, ये क्या है? ये कुछ ज़रा समझ में आया नहीं मुझको। What does that mean, sir? वो उनकी खुद की, मैंने कहा धर्मगुरु है, उनके खुद के कुछ होंगे, वो गए होंगे, उनकी इच्छा हुई होगी, गए होंगे। लेकिन उसका कोई पॉलिटिकल आगे इतनी बड़ी, मैं आप सर मैं इतनी बड़ी इतना बड़ा राजनीतिक वक्तव्य देने की क्या आवश्यकता पड़ गई? मुझे तो ये समझ में नहीं आया। आप धर्मगुरु हैं, आप आशीर्वाद दीजिए, थैंक यू वेरी मच, चलिए। अब उसके ऊपर आप कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ, लोगों के दिल में दर्द है, वो दर्द तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि उद्धव जी दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अब मेरी समझ में तो उद्धव जी दोबारा मुख्यमंत्री तभी बन सकते हैं जब वो बीजेपी के साथ वापस आ जाएं। सर गजरिया सर, देखिए, अब यहाँ से सैकड़ों मीलों दूर बैठे हुए, हजारों मील दूर बैठे हुए अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उनको महाराष्ट्र की जनता क्या सोच रही है वो पता होगा, तो ठीक है, उनका ओपिनियन है। वो एक सम्माननीय धर्मगुरु है, हम उनका आदर करते हैं। रही बात कौन मुख्यमंत्री बनेगा, तो उद्धव ठाकरे को तो सबसे पहले वो जाके एक बार नाना पटोले के साथ बैठ के बात कर ले, क्योंकि नाना पटोले ने तो खुद ने कह दिया है कि अगला मुख्यमंत्री तो वही है जी। तो शायद तो यही बेहतर होगा कि वो पहले अपने ही साथियों के साथ बात करे। लेकिन और बाद में क्या, सॉरी टू इंटरप्ट यू अगेन, लेकिन जो अभी एक हवा सी चल रही है कि हो सकता है कि उद्धव जी के साथ दोबारा बीजेपी की बातचीत हो, या उद्धव जी शायद दोबारा बीजेपी से बातचीत कर रहे हों, इसमें कुछ सच है क्या? देखिए, मैं तो बड़ा बहुत छोटा कार्य करता हूं, तो इसके अंदर सच क्या है ये जान के, ये देखो लुक एट हिम, ये मतलब अपने आप को जान के नीचा दिखाने की क्यों कोशिश कर रहा है? हमें मालूम है सर आपकी पहुंच कहां तक है, कौन आपकी बात सुनता है, कौन आपसे ब्रीफिंग लेता है हर हफ्ते, सबको मालूम है। हाँ बोलिए सर, आप बताइए। देखिए राजू जी, देखिए राजनीति के अंदर राजनीति इज ऑलवेज अबाउट अनप्रेडिक्टेबिलिटी, ठीक है। लेकिन हाँ, आज मैं आपको एकदम पूरे गंभीरता के साथ कह रहा हूं कि हमारा अलायंस एकनाथ शिंदे जी के साथ और अजित पवार जी के साथ और रामदास आठवले जी के साथ एकदम स्ट्रांग है, और ये अलायंस इलेक्शन के समय पे एक साथ जाएगा और वापस सत्ता पे आएगा। You know, Sanjay Raut has been criticizing well unconstitutional government in power in Maharashtra. He says law and judiciary हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमको तारीख पे तारीख मिल रहे हैं। 40 एमएलए हमारे और 40 एमएलए शरद पवार साहब के, अब भी हम लोग वही राउंड द कॉर्नर से घूम रहे हैं, कोर्ट के डेट पे डेट। There is no justice where we are concerned. क्रॉस वोटिंग जिस प्रकार से हो गए, एक एमएलए को 8 से 25 करोड़ 10 से 25 करोड़ दे के इन लोगों ने विधान परिषद पूरा हाईजैक कर लिया। पूरे महाराष्ट्र रीलिंग अंडर 8 लाख करोड़ डेब्ट्स एज पर संजय राउत। 200 करोड़ फंड एलोकेशन इनको हो गया, जो इलीगली तरीके से क्रॉस वोटिंग हो गया उनको फंड एलोकेशन हो गया, और जो जिसको जरूरी है फंड एलोकेशन उसको नहीं मिल रहा है। तो ऑल दीज चार्जेस संजय राउत हैज बीन पुटिंग कंटिन्यूअसली अक्रॉस। हाउ आर यू गोइंग टू कम ओवर इट? देखिए, संजय राउत, मुझे लग रहा है कि संजय राउत जी को आजकल वो थोड़ा बहुत जो मराठी मीडिया अगर हमने छोड़ दिया तो कोई सीरियसली नहीं लेता। मुझे तो लग रहा है कि उनके घर पे भी उनको कोई सीरियसली नहीं लेता, ठीक है। इसके पहले संजय राउत जी 2 साल तक, संजय राउत तो 2 साल तक ज्योतिषी बन गए थे। हर 15 दिन में आगे कहेंगे एक महीने के बाद सरकार गिरेगी, 30 जून को गिरेगी, 31 जुलाई को गिरेगी, 20 अगस्त को गिरेगी, 15 सितंबर को गिरेगी। हर महीने आके नई तारीखें देते थे, ठीक है। संजय राउत को तो मुझे लग रहा है कोई सीरियसली कोई लेता नहीं है।
और रही बात वो जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार वो थी जो 2019 में सत्ता में आई, जब उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी के दम पर सीटें लाई थी अलायंस में, और वो जाके सीधा कांग्रेस की गोद में बैठ गए मुख्यमंत्री बनने के लिए। अपने पिता के आदर्शों का गला घोट दिया उन्होंने, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं। और रही बात बाकी, और ये जो कह रहे हैं कि विधान परिषद ये वो, ये तो इनका बहुत अजीब है। 2.5 साल तक ये सरकार में अपनी मनमानी चलाते रहे, सब कुछ करते रहे, और अब लांछन दूसरों पे लगा रहे हैं। तो संजय राउत जी को तो कोई सीरियसली मुझे नहीं लगता कि अभी महाराष्ट्र में कोई भी ले रहा है। No, Gajaria Saab, the other thing is that Rahul Gandhi, if you go to national politics, Rahul Gandhi has been accusing Prime Minister Modi ki you have not been able to take care of price rise, inflation. Food items 9.36 inflation, Anaj 8.75, Dal 16.7, Sabji around 30%. So he says Prime Minister Modi has failed to control price rise and inflation, Gajaria ji. तो कैसे करोगे? बिकॉज वो एक है कि मार्केट में सब्जी लाने गए थे और सब्जी इतना महंगा तो सिर्फ मिर्ची वापस लेके आए, वो उनका वीडियो चल रहा है सब जगह कांग्रेस के। तो हाउ आर यू गोइंग टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड प्राइस राइज? दैट्स वेरी क्रूशियल एज ऑन टुडे। देखिए ये सबको एक पता है कि इन्फ्लेशन और जो प्राइस राइज होता है वो हर साल बहुत सीजनल होता है। कुछ सीजन्स में कुछ समय पे प्राइस ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, और गवर्नमेंट ने हमेशा प्राइस को कंट्रोल करने की कोशिश की है, और गवर्नमेंट सक्सेसफुल रही है पिछले 10 साल। और राहुल गांधी जब प्राइस राइज की बात करते हैं तो कोई उसको बताए कि 2006, 2007, 2008, उसके बाद 2011, 2012, 2013 में भारत में जो इन्फ्लेशन था वो ना तो आज देखा गया है, ना तो पहले कभी देखा गया था, और शायद ना तो कभी आगे देखा जाएगा। माने ना भूत हो ना भविष्य से इन्फ्लेशन भारत ने उस समय में देखा था। और जब इन्हीं की सरकार के मंत्री, इन्हीं की सरकार के लोग आके मजाक उड़ा रहे थे कि 5 रुपए में थाली मिलती है, 2 रुपए में मिलती है, ये होता है वो होता है, माने गरीबों का मजाक उड़ाने का काम जो कांग्रेस ने सालों से किया था, तो कांग्रेस को तो प्राइस राइज के ऊपर बोलने का सबसे पहले कोई अधिकार नहीं है। दूसरा, राहुल गांधी को आजकल एक नया हुआ कि हर मुद्दे पे, हर कहीं पे वो अपनी पीआर टीम, कैमरामैन पीआर टीम को साथ पे लेके जाते हैं, कुछ ट्यूटरिंग होती है, कुछ एक्टर होते हैं, उसके वीडियो बनाते हैं, उसके वीडियो निकालते हैं। देखिए, उनको तीसरी बार 100 से कम सीटें मिली, तो उसका जो धक्का लगा है उनके दिलो दिमाग पर, शायद दिल पे ज्यादा क्योंकि दिमाग तो कम है, वो बहुत बड़ा है। और वो ऐसी हरकतें करते रहेंगे, लेकिन कितने दिन करेंगे, कितनी कंसिस्टेंटली होगी ये सब हरकतें, वो देखना पड़ेगा, वो देखते हैं। तो सर, जहाँ तक के एम्प्लॉयमेंट का सवाल है, उसके ऊपर भी बहुत अटैक हो रहा है इस गवर्नमेंट के ऊपर। बार बार यही चीज बोली जा रही है कि somehow the other this government has not been able to create employment, रोजगार नहीं मिल रहा लोगों को। ये बात देखिए, ये जो पूरा नैरेटिव है ना, ये बहुत ही फ्लॉड नैरेटिव है, क्योंकि ये लोग जो बेंचमार्क को यूज करते हैं, वो बेंचमार्क यूज करते हैं कि प्रोविडेंट फंड में कितने ऐड हुए, कितने नए अकाउंट्स ऐड हुए। वो ये नहीं कहते हैं, और वो ये नहीं देखते हैं कि पिछले 10 सालों में गवर्नमेंट की विविध पॉलिसीज को लेकर कितने नए रोजगार, मैं जॉब नहीं कह रहा हूं, मैं रोजगार शब्द यूज कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड, स्मॉल बिजनेस, स्मॉल ट्रेडर्स कितने हुए, मुद्रा लोन हो, बाकी की सारी योजनाएं हो, तो कितने सारे उसके अंदर ऐड होते गए हैं। दूसरा, पिछले 1 साल के अंदर जो नंबर्स आए हैं अभी, जो सिर्फ जॉब्स ऐड हुए हैं, वो भी कितने हुए, वो भी देखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक डेटा को इस्तेमाल गलत तरीके से करते हुए जो पिक्चर बनाने की ये जो कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता हूं, सच कभी छुप नहीं सकता, और सच हम देख रहे हैं कि अगर भारत में अनएम्प्लॉयमेंट होता, अगर रोजगार क्रिएट नहीं होते, अगर बिजनेसेस क्रिएट नहीं होते, तो भारत आज जो इकोनॉमिक पावर हाउस है वो कभी नहीं हो सकता था। लेकिन गजरिया साहब, अभी हाल ही में, पर कल की बात है, एयर इंडिया के
बड़े 9 के 10 साल के बाद एडवर्टाइजमेंट निकला कि कुछ नौकरियां हैं 800,000 के करीब, लोडर की, पोर्टर की, असिस्टेंट्स की, जो अनाउंस की गई हैं, कम इन फॉर अ वॉक इन इंटरव्यू एट कलीना इन मुंबई। तो सर 25,000 लोग पहुंच गए, राइट लाइक सिचुएशन होने वाला था, तो उन्होंने कहा कि भैया अपना बायोडाटा छोड़ करके चले जाइए। सो मतलब दैट क्लियरली शोज दैट जॉब्स इज अ मेजर इशू के जरिए सर। राजीव जी, अगर आपने एक चीज देखा होगा कि ये आपके एयर इंडिया की बात कहें या बीच में भी गुजरात की एक जो ऐड आई थी जी, इन सारी ऐड के अंदर ये लोग क्या कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस, पीपल हु आर एक्सपीरियंस, बराबर, अनुभवी लोग इनको चाहिए। मुझे ये बताइए, ये लोग जितने भी लोग जाते हैं उनको अनुभव है, उनके पास ऑलरेडी जॉब्स, बहुत सारे लोगों के पास वो जॉब्स है, लेकिन कोई बेहतर, क्योंकि एयर इंडिया है, बेहतर नाम है, बड़ी कंपनी है, तो उसको लेकर किसी भी इंसान को मन में होगा कि मैं एक बड़ी अच्छी कंपनी में जाऊं। इट इज नॉट अ क्राइम टू बी एस्पिरेशनल। अगर हम आज एस्पिरेशनल युवा को या एस्पिरेशनल जो जॉब सीकर है उनको हम अनएम्प्लॉयड कह देंगे तो वो तो बहुत गलत बात होगी। बट सो मेनी पीपल सर, आई मीन फॉर सो such a less quantity of jobs, I mean it's like there's something wrong somewhere, that's all I'm saying. इधर है भरूच में, जो गुजरात में बोल रहे थे आप थे, यूपी में 60,000 पोस्ट ऑफ कांस्टेबल के लिए 50 लाख 50 lakh applies for 60,000। आई मीन यू नो एवरीवेयर यू अनाउंस अ जॉब तो उसे 100 गुना लोग वहां पर जमा हो जाते हैं काम के लिए। नाउ दिस इज समथिंग जो भी है, एज राहुल गांधी सेज 7 साल में 54 lakh people have lost their jobs, MSMEs have been shut down, 18 lakh MSMEs have shut down। आप सिर्फ अमीर मित्रों और अमीर दोस्तों के लिए काम कर रहे हो। देखिए, ये अगर जब भी राहुल गांधी बोलते हैं अमीर मित्रों अमीर दोस्तों की बात करते हैं ना, तो मुझे सिर्फ अनु टंडन और संदीप टंडन याद आते हैं। किसी दिन बहुत फुर्सत से आपके शो में पूरी कहानी बताऊंगा अनु टंडन और संदीप टंडन वाली, जिससे पता चलेगा कि अमीरों के लिए काम कौन करता है, कौन सा परिवार अमीरों के लिए काम करता है, कौन सा परिवार इंडस्ट्रियलिस्ट को बचाने के लिए कैसे कैसे कारनामे करता है, और राहुल गांधी और उनकी माताजी का रोल क्या रहा है बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों को फायदा पहुंचाने में। वो उसके लिए तो शायद मुझे लग रहा है कि आपको एक पूरा महीना शो करना पड़ेगा, रोज 1 घंटे का। अब रही बात एम्प्लॉयमेंट की, मैं वापस से वही कह रहा हूं, सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर, चलिए एक बार राहुल गांधी एक मिनट के लिए राहुल गांधी की बात मानते हैं कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट हुआ। अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अगर जॉब क्रिएशन नहीं हो रही है, तो इतनी सारी इंडस्ट्रीज खड़ी कैसे हो रही है, इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हो रहा है, इतने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कैसे हो रहे हैं, भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ कैसे बढ़ रहा है? हवा में बढ़ रहा है, विदाउट एम्प्लॉयमेंट, विदाउट अ जॉब। ये तो वो कहावत है, कहता भी दीवाना सुनता भी दीवाना। माने राहुल गांधी तो मूर्खों की तरह बात करने ही लगा है, लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत सारे नैरेटिव अभी वो चलने लगे हैं कि वो जो बोल रहा है वो सत्य है, लेकिन उसके पीछे के सवाल भी बताइए ना। अगर भारत के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट होती है, अगर भारत के अंदर कोई रोजगार नहीं खड़ा होता, तो भारत 5 ट्रिलियन की तरफ जाता कैसे? गजरे साहब, बजाज साहब ने जो उठाया है वो पिक्चर्स आपके सामने है, वो मिडिल में चल रहा है कि एयर इंडिया हो कलीना में, जहां करीबन 25,000 लोग जमा हो गए थे, भरूच में पूरे मॉल भर गया था, वो पूरे ग्राउंड फ्लोर में पूरे रेलिंग्स निकल गए, हरियाणा में 13 सीट एसएससी के लिए 13 लाख एप्लीकेंट फॉर 13 सीट्स, यूपी एज वी डिस्कस राइट नाउ 60,000 पोस्ट, 50 लाख पीपल एम्प्लॉयड राइटिंग एप्लीकेशंस, और भीड़ लग रहा है टीचर्स के ये है, उसमें भीड़ लग रहा है ना। ये भीड़ सिग्निफाइज समथिंग, आई मीन दिस कैन नॉट बी डॉक्टर्ड, कैन इट? देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर, गजरिया साहब। Though the government is trying, there's no doubt that the government is trying, but then we are not addressing the issues. No, I will tell you, let me tell you differently this thing. आप जिसको भीड़ और ये कह रहे हो, मैं कह रहा हूं कि ये एस्पिरेशनल इंडिया है। इनके पास, इसमें से जैसे कहा, ज्यादातर लोगों के पास जॉब होगी, लेकिन बेहतर नौकरी, बेहतर रोजगार के लिए अगर कोई आगे बढ़ता है तो उसका हक है,
उसका हक है। और रही बात सरकार की, सरकार एक्सट्रीमली कमिटेड है इसके लिए कि भारत के हर हाथ को रोजगार होना चाहिए, और पिछले 10 साल से उसके ऊपर काम हुआ है। और इसी रोजगार और इसी हाथों के दम पर जो भारत, जो मोदी जी का सपना है 2047 का, वो इसी रोजगार के दम पर पूरा होगा। लेकिन आप ये बताएं सर, ये तो चलो ठीक है, इसके बारे में वी कैन कंटिन्यू टॉकिंग, ऐसी कोई बात तो नहीं है, लेकिन अभी जो लाडला भाई स्कीम जो अनाउंस की गई है, और उसके पहले लाडली बहन, और उसके अलावा बाकी जो स्कीम्स अनाउंस करी हैं महाराष्ट्र में, सर वेयर इज द मनी गोना कम फ्रॉम? इट्स गोना कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। देखिए राजीव जी, अगर आपने एक ट्रैक, अगेन मैं वापस ट्रैक रिकॉर्ड्स पे जाऊं, कि जब भी भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकारें स्टेट गवर्नमेंट में आई है और उन्होंने कोई पॉपुलर स्कीम निकाली है, तो वो सोच समझकर उसका पैसा कहां से आएगा, उसके लिए इकोनॉमी में क्या होगा, वो सोच समझकर, इसीलिए एक भी आज तक इतिहास के अंदर एक भी भारतीय जनता पार्टी का शासित राज्य कभी भी बैंकरप्ट नहीं हुआ है। जैसे कभी कांग्रेस का हिमाचल प्रदेश हो गया, लेफ्ट फ्रंट का केरला हो गया, या फिर अभी कर्नाटका हो रहा है, और तेलंगाना से भी बातें आने लगी है कि क्या कर, तो वो है सबसे पहले वो। दूसरा, महाराष्ट्र हिंदुस्तान के डेवलपमेंट का पावर हाउस है, तो इसके जो अगर इसके लिए जो पैसे जरूरत पड़ेंगे, तो महाराष्ट्र में क्षमता है कि ये पैसे खुद से भी खड़े कर सकती है। जितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है और जितना और इन्वेस्टमेंट लाया जा रहा है नई कंपनियों के बलबूते पर, उसके दम पर महाराष्ट्र में क्षमता है कि वो हर एक स्कीम को पूर्ण कर सके। और अब तो आज तो कर्नाटका ने एक और मौका भी दे दिया है महाराष्ट्र को और इंडस्ट्रीज लाने का, महाराष्ट्र के अंदर और इन्वेस्टमेंट लाने का, और कंपनियां खड़े करने का। तो इन सबके बलबूते के ऊपर सरकार के पास एक क्लियर योजना जो है, उसके दम पर ये सारी स्कीम के पैसे भी खड़े किए जाएंगे, और ये सारी स्कीम सक्सेसफुली चलाई जाएंगी। I hope so, because the aspirations of people have really been raised very, very high. The bar has been raised. So I hope there won't be any disappointment in terms of कि भाई अभी स्कीम स्टार्ट नहीं हो रही, 3 महीने के बाद होगी या 4 महीने के बाद होगी. If that happens, there will be a problem, just like there is a problem right now with regard to Maratha reservation. मराठा रिजर्वेशन के लिए भी एक स्पेशल सेशन बुलाया गया था असेंबली का. आज वही मनोज जरंगे पाटिल साहब बार बार इसी सरकार को अटैक कर रहे हैं. वो कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ धोखा हुआ है, और सामने से ओबीसीज में भी कई लीडर आगे आ गए हैं. एक तो छगन भुजबल साहब तो हैं ही, एक वो लक्ष्मण हाके साहब भी हैं, अब वो भी बैठ गए थे बीच में हड़ताल के ऊपर, भूख हड़ताल के ऊपर. एंड ही हैज आल्सो थ्रेटन्ड दैट ही विल सिट ऑन अ फास्ट अनटू डेथ. प्रकाश अंबेडकर स्टार्टेड नाउ. प्रकाश अंबेडकर इज गोइंग टू गो ऑन अ बिग जुलूस. अगर वो कह रहे हैं कि भाई अगर कुनबी सर्टिफिकेट आप लोगों ने इतने ज्यादा दे दिए तो ओबीसी के पास बचेगा क्या? गजरिया साहब देखिए, अगर कोई पार्टी कंसिस्टेंटली ओबीसी समाज का रिजर्वेशन हो या मराठा समाज का रिजर्वेशन हो, अगर कोई पार्टी कंसिस्टेंटली उसके ऊपर सीरियस रही है तो भारतीय जनता पार्टी है. 50 साल तक इतने सारे कांग्रेस के मुख्यमंत्री जो मराठा थे, उनके होने के बावजूद भी कभी भी मराठा समाज को आरक्षण उन्होंने कभी नहीं दिया. पहली बार मराठा समाज को आरक्षण दिया गया था तो वो देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार के अंदर दिया गया था, और वो भी किसी और का आरक्षण छीने बगैर. तो सबसे पहली बात वो है. उसके बाद आरक्षण मराठाओं का जो आरक्षण मिला था वो किसने जाने दिया? तो उद्धव ठाकरे की, शरद पवार की और सोनिया गांधी की सरकार ने उसके जाने दिया. अभी जो रिसेंटली एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई, सर्वपक्षीय बैठक हुई, तो उसके अंदर महाविकास आघाड़ी क्यों नहीं आई? ये बैठक हुई थी सॉल्यूशन निकालने के लिए. महाविकास आघाड़ी ने इस बैठक का बहिष्कार किया, लेकिन मनोज जरांगे पाटिल कभी भी टारगेट करते नहीं है. उनके पास एक ही व्यक्ति और एक ही पार्टी है टारगेट करने को, जिससे पता चलता है कि उनको मराठा समाज की चिंता नहीं है. वो किसी के हाथों के खेल रहे हैं.
अगर उनको मराठा समाज की चिंता होती तो वो शरद पवार से सवाल पूछते कि आप ऑल पार्टी मीटिंग में क्यों नहीं गए। वो उद्धव ठाकरे के घर पे घेराव डलवाते कि आप ऑल पार्टी मीटिंग में क्यों नहीं गए। वो नाना पटोले का घूमना फिरना रुकवा देते महाराष्ट्र में कि आप ऑल पार्टी मीटिंग में क्यों नहीं गए। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ न करते हुए एक ही पक्ष और एक ही व्यक्ति के ऊपर अपने अटैक रखे, जिससे सबको पता चलता है कि उनका उद्देश्य क्या है। और मुझे लग रहा है कि मराठा समाज के जो यूथ है उनको भी समझ में आ रहा है कि जरांगे पाटिल उनके लिए नहीं किसी और के लिए लड़ रहा है। Right, Mr. Kadaria, thank you so much for joining us. It's been a great pleasure as always. I hope this scheme really succeeds because this is exactly what Maharashtra needs, by the way. जो अब ये भी अनाउंस करा है एक नाथ शिंदे जी ने, ये एक्चुअल रिक्वायरमेंट है महाराष्ट्र की, और वो अगर यहाँ पर सफल हो जाते हैं दैट विल बी रियली एंड ट्रूली वंडरफुल। एंड एज यू सेड, महाराष्ट्र इज द इंजन विच ड्राइव्स इंडिया एट द मोमेंट। Tentatively, we are at $3.942 trillion. That's the state of the economy in terms of GDP per year. Hopefully, we should be able to overtake Japan in the next 6 months and go up to $4.5 trillion. If we are able to do that, nothing like it. And Maharashtra will have to play a huge part in that. Gajaria Saab, thank you very much for joining us. बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बहुत दिनों के बाद आप मिले। बहुत दिनों के बाद। जी, बहुत दिनों के बाद। धन्यवाद, मिलेंगे। Thank you very much. Jai Siya Ram. थैंक यू sir. जय श्री राम। No, but, really, Pradeep ji, the thing is that where is he going to get the money from? I hope he's able to. But I think this government is doing the way मोदी जी आए थे 2 दिन पहले और वहाँ से शुरू हो गए प्लान तरीके से, और एकादशी के दिन चीफ मिनिस्टर अनाउंसेस कि मैंने लाड़की बहन के बारे में बात किया, लाड़का भाई भी इसके बारे में बात करेंगे, और अनाउंस किए। आई मीन, लेकिन प्रदीप जी, ये दोनों स्कीम्स के लिए, लाडली बहन और लाडला भाई स्कीम के लिए आपको मिनिमम मतलब 80 से 90 हज़ार करोड़ चाहिए। वो कहाँ से आएंगे सर? अब सरकार ने सोच के रखा होगा सब कुछ। दे नो फ्रॉम वेयर इतना बड़ा बड़ा इंफ्रा प्रोजेक्ट्स आ रहा है लाखों करोड़ों का, तो where that is coming, I don't think they're going to have any problem where this is concerned. If they have no problem with regard to money, then hats off to them. Yes, Because yes. I don't see the money coming, very frankly. Because अभी जो बुलेट ट्रेन के चल रहा है, it is very जी। essential that this government stays. Then all the top projects works, चाहे वो मेट्रो रेल हो, बुलेट ट्रेन हो, so the government will do everything to see that this government again survives for the next 5 years. Because they don't want to see that last 2.5 years when Uddhav Thackeray was CM, they accused that particular government of stopping all development projects. Forgetting the fact that for 2 years there was COVID and there was a lockdown. But still, there was no work going on, and all projects were stopped. It was stopped. Except the coastal road. Yes. So it was a deliberate stop, full stop there. It was not because of COVID, I think. It was just because whatever reasons were there. So that 2.5 years were a loss of the government for the government of India, loss of face for this industry, and development never took place. So I think the government will do everything to see that this government again, the Mahayuti again takes on. I hope so, because where is he going to get the money from? Because Maharashtra, I don't think, has the resources for that kind of money. Even the budget, for example, which has been announced by Ajit Dada Pawar, it contains very, very, very unreasonable targets. I don't think he'll be able to achieve any of his targets. If he does, hats off to him. Then I don't know a thing about economics. But then one never knows. And at the moment with us from Azamgarh